अशोक जेटावत सर, डॉक्टर जयश्री जैन, ये दोनों ही बहुत दिग्गज हैं जो हाईली मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं, जिनको हमने बुलाया है आज आप सभी लोगों के लिए। तो मैं इनके लिए जो इनका इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा ब्रीफ में देना चाहूँगा, और आई बिलीव आप सभी लोग इनका जो सेशन है जिस पे ये आज कवर करेंगे, जो है कि आप अपने जीवन के अंदर जो आपका पोटेंशियल है, जो आप शो कर रहे हो यार ऑलरेडी, उस पर और कैसे आगे अपन बढ़ सकते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ प्रोफाइल आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा अशोक जी के लिए। अशोक जी, आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपके बारे में बताऊं सर। थैंक यू। तो अशोक जेटावत इज द चेयरमैन ऑफ अ मोटिवेशनल सोसाइटी ऑफ अचीवर्स। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, he did MTech, MBA and masters in 3 other disciplines. Doctorate he also completed from MLSU in e-governance. Dr. Jetawat was also felicitated as a Scroll of Honor by the Institution of Engineers on 43rd Engineers Day towards the contribution and services for the engineering fraternity at large. Dr. Jetawat was given the award of Fellowship 2019 to 20 by the National Council of Indian Institute of Industrial Engineering. Dr. Jetawat is a corporate trainer. अरे वाह सर, corporate trainer, क्या बात है। Dr. Jetawat is a corporate trainer having specialization in team building, team management, productivity, work commitment, e-commerce, e-governance, study techniques, mind management, stress management, concentration, soft skills and personality enhancement and development. Thousands of corporates and students from various organizations have benefited from the seminars given by Mr. Dr. Jetawat. He is also a guiding force for the prisoners of Udaipur Central Jail on regular basis. Sir, thank you. That's a great honor. मतलब आप लोग मतलब seriously मतलब it's not just about the society, you are taking us as whole. Thank you so much for that. He is also the member of special interest group on e-governance of Computer Society of India. He is also the active member of Internet Governance Capacity Building Program, whose head office is in Geneva. बाहर की तरफ जिनेवा है ना, जैसे आज अपन बाहर आए, उदयपुर आए। पहले एक टाइम हुआ करता था गाइस, जहाँ पे मैं अवार्ड्स देता था हमारे लक्ष्मी इंडिया के 5वें फ्लोर पे। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग आए, 2019 की बात है, 5वें मंजिल पे देता था। आज वो मंजिल पिछले साल पुष्कर हुई, पुष्कर से आज यहाँ पे उदयपुर हुई। क्या बात है यार, पहले 10 लोग खड़े होते थे, आज 200 हैं, जहाँ पे मेरे साथ और आने वाले हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो Dr. Jetawat has also published more than 50 research papers in national, international journals and conferences. He has been the member of organizing committee for various national and international seminars and workshops. His paper was ranked as one of the best 3 papers in India in the SMU Academic Council Conference 2010 held at New Delhi. Dr. Jetawat was also awarded the fellowship from the Institute of Engineers in 2023. We welcome Dr. Ashok Jetawat and Dr. Jayashree ma'am. Thank you so much. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ यहाँ पे मंच पे आएँ और हम सभी को थोड़ा सा मोटिवेट और करें। हाईली मोटिवेटेड हैं वैसे ये, है ना, ये और शाम को हाईली मोटिवेट होने वाले हैं, तो उससे पहले हम उसकी शुरुआत अभी से करते हैं। तो I welcome Ashok ji. Let's give him a round of applause ji for such a nice and wonderful introduction. Really, I appreciate. First of all, I welcome all the senior executives from Lakshmi India Finance Private Limited. This is a team on pan-India basis having some achievements, and we are celebrating here Lux 2024 in Udaipur. Do you know today is a special day? आप महाराणा प्रताप की वीर भूमि में यहाँ हैं और हम यहाँ पे महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं, मालूम है ना? We are celebrating the जयंती ऑफ महाराणा प्रताप on this auspicious day. मैं लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के सभी पदाधिकारी, श्रीमान दीपक जी, कुलदीप जी, जीएल कुमावत सर, पवन जी, रोहित जी, शुभम जी, अरुण जी, विनोद जी, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट रागिल जी एंड अनुराधा जी, उन सभी को और सारे टीम मेंबर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ
कि you have given me the opportunity to speak something and to interact with the beautiful and dynamic audience. आज हम कुछ स्पेशल बात करेंगे, अपने बारे में बात करें कि हम क्या हैं और हम अपनी पोटेंशियलिटी को टॉप पे कैसे ले जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है, मालूम है ना आप सभी को। या आप सभी अचीवमेंट कुछ लेके फिर आए। ये जो आधा पौन घंटे का सेशन है, तो पौन घंटे के सेशन में वी विल डिस्कस एंड थिंक अबाउट अवरसेल्फ, हमारे बारे में, हमारी क्या पोटेंशियलिटी है और उसको हम टॉप पे कैसे ले जा सकते हैं, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि मोटिवेशनल सोसाइटी कई सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वर्कशॉप सेमिनार्स करते आए हैं और एक रेगुलर बेसिस पे कॉर्पोरेट में, स्टूडेंट्स में, अलग अलग जगह जहाँ भी कभी हमें मौका मिलता है, जैसे प्रिजनर्स है, तो सभी जगह हम जाते हैं, जो भी हमें याद करते हैं और उनको हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। So today we will be doing something for ourselves and how we can achieve our best for the society, for ourselves, for the nation and for the universe as a whole. साथियों, हम बात करेंगे कि अलग अलग तरह के लोगों से हम डील करते हैं। आप सभी को पता है, आप सभी फाइनेंस के बिजनेस में, और दुनिया में सबसे नोबल जो बिजनेस है वो है फाइनेंस का, पैसों का आदान प्रदान। इस दुनिया में बिना पैसों के लेन देन के कोई काम नहीं होता है, कोई एक्टिविटीज नहीं होती, कोई इस इंडस्ट्री नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं जो कि दूसरों से पैसा लेके या दूसरों को देके अपना काम चलाता है। सो यू आर इन ए नोबल काज। लेकिन कई बार ये होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम उसको इंट्रोड्यूस ढंग से नहीं कर पाते, हमारी जो फुल पोटेंशियल होती है उस पोटेंशियल को एक्सपोज नहीं कर पाते और कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर रिस्पॉन्स। उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कितने तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। यदि हम एम्प्लॉयज की बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे कि टेम्परेरी, 5.59 क्लब, रिज्यूमे बिल्डर्स, इफेक्टिव लॉन्ग रेंजर्स, टीम प्लेयर्स, रिलायबल लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा टेम्परेरी होते हैं, कहीं एक जगह वो स्टेबिलिटी नहीं होती है, थोड़े दिन काम करेंगे दूसरी जगह चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक जगह काम किया तो वहां उनकी जो भी पोजीशन होती है तो वापस रिज्यूमे बना के कि वो सोचते हैं मेरा ये लेवल आ गया, वो उससे आगे मैं कैसे जा सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरा जैसे मैं आज काम कर रहा हूँ तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। 5.59 क्लब समझते हैं ना, 6 बजे यदि आपको जाने का टाइम है तो आप 5 बजे से जाने की तैयारी चालू कर देते हैं। आपके ऑफिस में मन नहीं लगता, आपको ये सोचते हैं कि कब मैं यहाँ से वापस निकलूँ। तो ये तो कैटेगरी होती है टेम्परेरी। लेकिन कई सारे ऐसे भी होते हैं जो इफेक्टिव लॉन्ग रेंजर्स होते हैं, जैसे उनको एक बार जो काम दे दिया उसके बाद में यदि उनको डिस्टर्ब नहीं किया तो वो काम बड़े सेटिस्फैक्टरीली करेंगे। फिर उसके बाद में आता है टीम प्लेयर्स की, जो टीम को लेके काम करते हैं। सभी को जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद तो करते हैं लेकिन साथ में टीम से काम लेने की उनकी क्षमता होती है। उसके बाद में होता है रिलायबल लीडर्स। कई सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि जब भी आपको जरूरत पड़े हमेशा आधी रात में आपके लिए तैयार रहते हैं। आपने अपने बीच में भी देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं, जब आपको कोई दिक्कत आ रही है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको याद करो, वो हमेशा आपके साथ तैयार रहते हैं। और फिर होता है एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब आप अपने बीच में आपने कई लोगों को देखा होगा, वो कंपनी को ऐसा मानते हैं जैसे ये मेरी कंपनी को बिल्कुल अपनी कंपनी की तरह ट्रीट करते हैं। हम फाइनेंस के बिजनेस में तो हमेशा अपने को लोगों से डील करने का काम पड़ता है, समझ रहे ना, हमेशा लोगों से बात करते हैं अपन। तो लोगों से बात करते हैं तो आपको उनकी कैटेगरी को यदि आप नहीं पहचानेंगे तो आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। अब कैटेगरी में अलग अलग बताता हूँ। जैसे फर्स्ट कैटेगरी फिजियोलॉजिकल नीड्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस रोटी कपड़े और मकान के लिए स्ट्रगल करते हैं। देखिए इस दुनिया में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, अपने हिंदुस्तान की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और आपको मालूम होगा कि इतनी पॉपुलेशन में हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट्स अलग होता है, उनके आई का पैटर्न अलग होता है। यदि 2 ट्विंस है तो भी उसमें डिफरेंस होता है, उन दोनों के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। सिर्फ एक चीज जो समान होती है वो ये है कि जब किसी भी बच्चे का बर्थ होता है तो उनके जो माइंड की कैपेबिलिटी होती है वो माइंड की कैपेबिलिटी सभी बच्चों की सेम होती है। अब जब माइंड की कैपेबिलिटी सभी की सेम, मैं कुछ स्पेशल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान ने तो सभी को एक जैसा पैदा किया,
तो कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ स्ट्रगल करते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी टॉप पे पहुंचे। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका जो अपलिफ्ट होता है या आपका जो डेली रूटीन है या आपको जो अपनी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज अपन पूरी तरह से नहीं कर सकते। कई लोग अपने जीवन से निराश होकर सुसाइड कर लेते हैं, अपन देख रहे हैं। मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स बताऊं। एक बार एक इंटरनेशनल सर्वे हुआ था कि आखिर में एक आदमी के जीवन की कीमत कितनी है, तो उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की इंटरनेशनल वैल्यूएशन निकाली कि भाई आज जैसे आपका लंग है, लीवर है, आईज है, हर एक की इंटरनेशनल डॉलर्स में वैल्यूएशन निकाली और उन सभी को जोड़ा तो ये पता चला कि एक इंसान के जीवन की कीमत 40,000 करोड़ रुपए। कितनी? 40,000 crore rupees is the worth of a human being if we calculate internationally of each and every part of the body. कहने का मतलब ये कि जो ही आपका जन्म हुआ तो भगवान ने 40,000 करोड़ की एफडी के साथ में आपको पैदा किया। समझ रहे हैं मेरी बात को कि यू हैव बीन बोर्न विद द एफडी ऑफ 40,000 करोड़। अब भगवान ने आपको खूब सारा दिया, तो जब भगवान ने आपको खूब सारा दिया है तो फिर आप निराश क्यों हैं? मैंने देखा ऐसे कई सारे लोगों को जो हमेशा दुखी रहते हैं। अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे को तो गलत घर में पैदा हो गया, मेरे माँ बाप ऐसे, माँ बाप ने मेरे को कुछ नहीं दिया। आप देखते होंगे आपके आसपास कई सारे लोगों को देखते होंगे, समझ रहे ना, कि मेरे तो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, मेरी एजुकेशन सही नहीं है। तो इस तरह से लोग अलग अलग कंप्लेंट्स करते रहते हैं, रोज कंप्लेंट बॉक्स है वो। एक चीज में आपको बता दो, स्टैटिस्टिक्स में भगवान हमेशा तथास्तु तथास्तु बोलता रहता है। कुछ लोग दुखी रहते हैं, भगवान बोलता है तथास्तु, ऐसे ही रहे तो दुखी रहे। कोई बोलते हैं हाँ नहीं मेरे तो भगवान ने सब दिया है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, भगवान बोलते हैं तो खुश रहे, तथास्तु। आपको पता है ना हिंदू कल्चर में कण कण में भगवान बसते हैं, मालूम है ना। तो कण कण में भगवान बोलते हैं, तो यदि आप दुखी रहोगे, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आएगा, आप अपने पड़ोस में आपके साथ में जिन लोगों के साथ में आप रहोगे वो भी दुखी रहेंगे। तो इसका मतलब है कि आप दुख को फैला रहे हो, उसको आसपास में स्प्रेड कर रहे हो। बांटो खुशियों को, सोसाइटी में बांटो, अपने परिवार में बांटो। आपका लोग इंतजार करें, आपकी कंपनी को एंजॉय करें। यदि आपको ऐसी एटीट्यूड आपके रहेगी तो आपका जीवन सफल है। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे आपने कई बार होता है कि आपने जैसे मान लीजिए सपोज हमारा फाइनेंस देने का काम है, जो फोन उठाया ना, आपको लोन चाहिए, पहला स्टेटमेंट ही होता है कि आपको लोन चाहिए। तो यह है कि आपको जो भी क्लाइंट है जिससे बात करें उसका प्रॉपर एक एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो उसका नेचर क्या है और उसकी कैटेगरी क्या है। आप मेरी बात समझे ना। तो जब तक आप इस आदमी को नहीं पहचानोगे, उसकी कैटेगरी को नहीं पहचानोगे, तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। तो कैटेगरी के लिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा था, आदमी की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है रोटी कपड़ा मकान। अब जो आदमी स्ट्रगल कर रहा है, उसको सुबह भोजन कर लिया, शाम को उसके भोजन का पता नहीं, उसको आप इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में और चुनाव के बारे में बात करोगे, उसको बिजनेस के बारे में बात करोगे, वो बोलेगा मेरे को इससे क्या मतलब, मेरे को तो शाम के भोजन की व्यवस्था चाहिए। आप मेरी बात समझे ना। इसी तरह से यदि मान लीजिए जब रोटी कपड़ा मकान की आपकी व्यवस्था हो जाती है तो सेकंड कैटेगरी आती है सेफ्टी की। भाई मेरे को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिले, सोसाइटी में मैं आराम से जी सकूं। देन आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। जब सेफ्टी सिक्योरिटी हो जाती है तो आप सोचते हैं कि कुछ लोग मेरे प्यार करने वाले भी हो, मेरे को चाहने वाले हो। एंड देन आता है आपका स्टीम। उसमें क्या होता है, आदमी को पद चाहिए, पोजीशंस चाहिए, पावर चाहिए। और उसके बाद में फिर आता है लास्ट स्टेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें कि उसको पद, पावर, पैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन में जितने सुख है वो सब उसको मिले हुए होते हैं। तो उसको सिर्फ वही काम करता है जिससे कि उसके मन को संतुष्टि मिलती है। आप जिनसे डील कर रहे हैं, जब तक उनका बायोडाटा, उनका प्रोफाइल, उनकी नीड और आपका जो बिजनेस है वो उनकी नीड से मैच हो रहा नहीं हो रहा, जब तक इसकी स्टडी नहीं करेंगे और उनसे डील नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और उसके लिए क्या करना होगा कि इन प्लेस ऑफ शोइंग दैट यू आर डूइंग ए बिजनेस विद देम, या आप अपने फायदे के लिए उनसे डील कर रहे हैं, आपको क्या शो करना पड़ेगा कि यू आर ए कंसल्टेंट
आप उनके दोस्त हैं और आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। यदि इस तरह की एक हेल्पिंग एटीट्यूड आप शो करेंगे, ऑटोमेटिकली वो अपने सारी प्रॉब्लम्स आपको बताएगा अगला आदमी, और आप उसके एडवाइजर बनिए। बनिस्बत इसके कि आप सीधे अपने बिजनेस की बात करें। बिजनेस की बात सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आनी पड़ेगी। आप लोगों को भी ट्रेनिंग देते होंगे तो आपको बताते होंगे। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट पहली लाइन में आप अपने बिजनेस की बात चालू कर दो। अपन कई बार लोगों से मिलने जाते हैं ना, अपने दोस्तों से, किसी काम से जाते हैं, तो क्या जाते ही पहली लाइन से अपन अपने काम की बात चालू कर देते हैं? क्या करते हैं अपन? कैसे रहा सफर, कैसा रहा, कोई रास्ते में कोई तकलीफ नहीं पड़ी, पानी पियो, 5-10 मिनट 15 मिनट जनरल बात करके उसके बाद में अपन दूसरा काम करेंगे। ऐसे ही होता ना। तो ऐसे ही बिजनेस में भी आपको वही एटीट्यूड फॉलो करना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? हम एफर्ट्स कितना लगा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आउटपुट क्या मिल रहा है। कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं और उसके अगेंस्ट में आउटपुट क्या मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन। कितने लोगों ने इस शब्द को सुना? प्रोक्रास्टिनेशन। प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोगों ने इस शब्द को सुना? प्रोक्रास्टिनेशन। एक शब्द होता है आलस्य, लेजीनेस। सो दिस प्रोक्रास्टिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम लेजीनेस। ये क्या होता है? देखिए, जीवन में कई सारे काम होते हैं। कुछ काम पहले करने होते हैं, कुछ काम अपन इसको बाद में भी कर सकते हैं। तो प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है कि हम जो अर्जेंट काम होता है, उस अर्जेंट काम को छोड़ के जो हमारे मन को बाता है, उस काम को हम पहले करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन। आपके साथ होता होगा ना ऐसा कि हो सकता है कुछ काम अर्जेंट हो जो कि आपको पहले करना हो, लेकिन आपका मन कहता है कि यार नहीं, ये तो बाद में भी कर सकते हैं, अभी तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय है। ठीक है ना। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं। बिजली का बिल, पानी का बिल, मान लीजिए 3 तारीख को आपका बिल आ गया और 28 तारीख आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, आपके पास 20-25 दिन है, लेकिन मैंने देखा 80% लोग जो लास्ट डेट होती है उसको 10 दिन पहले जमा कराते हैं। होता है ना सर। आपके बच्चों के बारे में अपन बात करें, कई बार बच्चे पूरा साल भर अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो समय है, और जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले, 15 दिन पहले रात को पूरी रात खाली करेंगे और पढ़ाई करेंगे। ऐसा होता है ना। तो हम बात करें प्रोक्रास्टिनेशन की, कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग आउट लेस अर्जेंट टास्क इन प्रेफरेंस टू द मोर अर्जेंट वंस। और प्रोक्रास्टिनेशन है क्या? ये आपके प्रोडक्टिविटी के लिए डेथ का काम करता है, प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। कैसे खत्म करता है? अपन सोच क्या बोलते हैं, अभी मूड नहीं है, अभी काम करने का मूड नहीं है, अभी तो बहुत समय है, समझ रहे ना। या फिर और भी कई सारे एक्सक्यूज है, अभी मैं बिजी हूं, समझ रहे ना। अच्छा, इस दुनिया में मूड जैसी कोई चीज नहीं होती है। मैं कई बार बच्चों के साथ में बात करता हूं, इंटरेक्शन करता हूं। 3 घंटे का उनका एग्जाम का पीरियड होता है, 3 घंटे 2.5 घंटे का। एग्जाम में वो पढ़ाई नहीं कर सकते, एग्जाम में पढ़ाई नहीं कर सकते। अब पहले घंटे में जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, उस टाइम भी वो सोचते हैं यार इसका मैं आंसर बाद में दूंगा। अरे बाद में तेरा दिमाग चेंज हो जाएगा क्या भाई? जो कुछ करना, डिसीजन लेना वो अभी करो। तो वो क्या है, खाली 2 घंटे तक तो इसी डिसीजन में है कि अभी करो बाद में करो, जबकि 3 घंटे में उनका दिमाग कहीं और ज्यादा कोई वैल्यू एडिशन नहीं होने वाली है। तो ये हमारे माइंड की साइकोलॉजी है कि हम हर चीज को बाद में डालने की कोशिश करते हैं। तो उस साइकोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तभी हम हमारी पोटेंशियलिटी को फुल लेवल पे पहुंचा पाएंगे। अब इसके कई सारे कॉजेज हैं। कई बार होता है लाइफ में हमारा गोल भी नहीं होता, पता ही नहीं होता है कि हमारा गोल क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, समझ रहे ना। अच्छा, एक बात बताइए, अपने जीवन में सफलता कौन कौन प्राप्त करना चाहता है? प्लीज रेज योर हैंड। हु वांटेड टू गेट द सक्सेस इन योर लाइफ? प्लीज रेज योर हैंड। आधे अधूरे नहीं, सफलता मिलने पूरी एकदम फुल एनर्जी से। इट्स मींस एवरीबॉडी वुड लाइक टू गेट द सक्सेस इन लाइफ। हर आदमी अपने जीवन में सफल होना चाहता है। मेवाड़ में एक कहावत है, आपको स्वर्ग जाना है तो मरना आपको पड़ेगा, पड़ोसी मर जाए और स्वर्ग में आप जाओ ये संभव नहीं है। ऐसा होता है क्या? कि नहीं, मेरे मरने की इच्छा नहीं है, तू मर जाए स्वर्ग में मैं जाऊं, नहीं होता ना। तो यदि आपको जीवन में सफलता चाहिए तो सफलता के लिए जो कुछ भी करना है कौन करेगा?
जीवन में सफलता के लिए जो कुछ भी करना है कौन करेगा? मैं करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं ही करूंगा, कोई दूसरा ना आपकी बीवी करेगी, ना आपके बच्चे करेंगे, ना आपके फ्रेंड्स करेंगे। आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए जो कुछ करना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो आप ही को करना पड़ेगा। और आप सभी ने तो लक्ष्य हासिल किया, तभी तो यहाँ आए उदयपुर में, महाराणा प्रताप की वीर भूमि में। तो एक बार अपनी ताकत को पहचान के और अपने खुद के लिए एक बार तालियां बजाइए प्लीज, जोर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। कि मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग एंड आई विल डू, नोबडी एल्स विल डू, कोई दूसरा नहीं करेगा। और हमें लाइफ में क्या करना पड़ेगा कि क्लियर कट गोल लेना पड़ेगा। हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं? मेरे को पता है कई लोगों के गोल नहीं होते, उनको पता ही होता लाइफ में करना है क्या। कई बार ऐसा होता है हम ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं, कोई भी काम किया यस सर हो जाएगा। कुछ लोग मना नहीं कर सकते, है ना? ऐसा आप में से कई लोग मना नहीं कर सकते, तो जिसमें उनकी एक्सपर्टाइज है वो भी काम ढंग से नहीं हो पाता, और जो चीज उन्होंने, जो चैलेंजेस उन्होंने एक्सेप्ट किया वो भी नहीं हो पाता। तो वो एक भी काम को ढंग से नहीं कर पाते, एक भी काम को ढंग से नहीं कर पाते। देन ओवर परफेक्शन, हम हमेशा एकदम बेस्ट काम करना, तो ये एक एक्सक्यूज है। 100% सही इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में 100% कुछ भी नहीं होता। आप काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। क्या करें? काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। 100% सही नहीं तो 90% है, 95% है, ठीक है, ओके, थोड़ी बहुत गलतियां सबसे रहती है, लेकिन 100% के चक्कर में आप काम ही नहीं करें। ज्यादातर लोग ऐसे होते, काम करते ही नहीं है कि यार अभी ठीक, तो ये क्या एक्सक्यूज है? आप अपने आप को समझा रहे हो, दूसरों को बेवकूफ बना रहे हो। सो ओवर कमिटमेंट इज द नेचर ऑफ सो मेनी पर्सन। देन फियर ऑफ फेलियर, कई लोग ऐसा होता है कि फेलियर के चक्कर में काम लेते ही नहीं, चैलेंजेस नहीं लेते हैं। अच्छा मैं बताता हूं, फेलियर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के फेलियर होते हैं। एक फेलियर कि आपने काम किया और उसके बारे में सोचा नहीं, आपने काम तो कर लिया लेकिन बिना सोचे समझे काम कर लिया। और दूसरा 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 क्या होगा? है सोचा लेकिन काम ही नहीं किया। सोचते रहते मुंगेरी लाल के सपने, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, लेकिन कभी भी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। व्हाट इज द फर्स्ट फेलियर? एग्जीक्यूटेड बट नॉट थिंक। द सेकेंड वन, ऑलवेज थिंकिंग बट नॉट ब्रिंगिंग इनटू एक्शन। तो दोनों फेलियर के कारण है। और हमें तो जीवन में सफलता प्राप्त करनी, क्या करना? जीवन में सफलता। और सफलता के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? खुद। मैंने आपको कहा था कि जीवन बहुत अमूल्य है, 84 लाख योनियों के बाद में जीवन मिला, और यदि आपने इसको जीवन को एवरेज बनाया तो भगवान कहेगा साला ये काबिल नहीं है, तेरे को तो मैंने मनुष्य जन्म दिया, चल अगले जन्म में तेरे को कीड़ों मकोड़े बना देते हैं। ऐसे ही करेगा? आपको इतना अमूल्य दिया, 40,000 करोड़ की एफडी के साथ में आपको पैदा किया, और फिर भी आपने उसको फायदा नहीं लिया, वेस्ट किया। भगवान भी यही करेगा कि यार चले को तेरे को दिया तो था, तो दुखी रहा है, तेने खुद भी दुखी रहा और दूसरों को भी दुखी किया, चल अगले जन्म में गधा बन जा। होता है ना? और हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं पता है आपको? एक मैं बहुत सरप्राइजिंग बात बताता हूं आपको, कि आदमी अपने शुरुआत में अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे पैसा जमा करता, हेल्थ का ध्यान नहीं रखता। होता है ना ऐसा? और 50-55 साल के बाद में उस हेल्थ को रिटेन करने के लिए पैसा खर्च करता। होता है कि नहीं? पहले तो आपने कंप्रोमाइज किया हेल्थ पर, पैसा इकट्ठा किया, ना तो एंजॉय किया, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, और लास्ट में आपकी हेल्थ कंप्रोमाइज हुई, कई सारी बीमारियां हो गई, तो जो पैसा जमा हुआ उसी को खर्च किया। सो दिस इज अ सरप्राइज अबाउट द मैनकाइंड। ये हमारे जीवन की सरप्राइज है। और ये ऐसा क्यों होता है? देखिए हमारे गोल होंगे, लेकिन हम इंजॉय किसको करते हैं? अचीवमेंट्स को इंजॉय करते हैं। उस अचीवमेंट्स के लिए जो पाथ है, रास्ता है, उसको एंजॉय नहीं करते हैं।
आपको अचीवमेंट मिल गया, आपको गोल मिल गया। जैसे मान लीजिए सपोज आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया या फिर आपने कोई आपका अवार्ड जीत लिया, तो जीत का जश्न तो 1 या 2 दिन 3 दिन रहेगा, लेकिन आपने यदि उस पाथ को एंजॉय करने की कोशिश की तो आपका पूरा पूरा जीवन एंजॉयमेंट हो जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ एंजॉयिंग द डेस्टिनेशन और इन प्लेस ऑफ एंजॉयिंग द अल्टीमेट गोल, व्हाई नॉट टू एंजॉय द पाथ? रास्ते को एंजॉय क्यों नहीं करें? और यदि हमने रास्ते को एंजॉय करना चालू कर दिया तो हमारे 12 ही महीने 24 ही घंटे एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट, बिकॉज वी आर एंजॉयिंग द पाथ आल्सो। होता है ना ऐसा? देन फियर ऑफ चेंज, कई लोग ऐसा होता है चेंज में भी हमेशा उनको एक जगह से दूसरी जगह या एक लोकेशन से दूसरी जगह उसका भी फियर रहता है। देन फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, कई बार क्या हो सकता है मेरा क्रिटिसाइज हो, तो चैलेंज लेते ही नहीं है लाइफ। एवरेज, मैंने देखा कई सारे लोगों को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, यू आर ऑल आर अचीवर्स। मेरी सोसाइटी का नाम भी मोटिवेशनल सोसाइटी ऑफ अचीवर्स, और आप भी चूंकि लक्ष्य 2024 में यहाँ आए हैं एंड यू हैव अचीव्ड समथिंग, तो यू ऑल आर अचीवर्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज पर्सन। तो वो क्या होगा कि फियर ऑफ क्रिटिसिज्म के चक्कर में कोई नया चैलेंज लेते ही नहीं है कि पता नहीं यार जवाब देना पड़ेगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। और जब तक जीवन में आप चैलेंजेस नहीं लोगे तब तक आपकी लाइफ सक्सेस नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक जीवन में सांस है, जब तक जीवन में सांस है तब तक चैलेंजेस रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना? तब तक चैलेंजेस रहेंगे, तब तक दुख रहेगा, तब तक कठिनाइयां रहेगी, और तब तक कुछ न कुछ स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। अब क्या होता है कई बार कि जब इंसान की लाइफ स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहले वो रोटी कपड़ा मकान के बारे में स्ट्रगल करता है। उसका मकान बन गया तो वो सोचता है मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल गई तो अच्छी शादी हो जाए, अच्छी शादी हो जाए तो बच्चे हो जाए, बच्चे हो जाए तो उनकी शादी हो जाए, फिर पोते पोती हो जाए। ये रूटीन एक चलता रहेगा, और खूब सारा पैसा मिल गया, बच्चे भी हो गए, अच्छी नौकरी भी हो गई, सारी चीजें हो गई, तो फिर चैलेंजेस दूसरे तरह के आते हैं। फिर चैलेंजेस क्या आते हैं? ईगो इशू, कि मैं यहाँ गया तो इसने मेरा रेस्पेक्ट नहीं किया, मेरे को देख के खड़ा नहीं हुआ। जब आपकी ये जो दूसरी प्रिलिमिनरी बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाती है ना, तो इश्यू दूसरे चालू हो जाते हैं। क्या चालू हो जाते हैं? कि मेरा रेस्पेक्ट नहीं हुआ, मेरे को एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम सभी को है, आपके प्राइम मिनिस्टर को प्रॉब्लम, पॉलिटिशियंस को भी प्रॉब्लम, जो अमेरिका के राष्ट्रपति उसको भी प्रॉब्लम, वो भी कोई सुखी तो नहीं है ना। तो एक बात होता है, कौन आदमी स्ट्रगल नहीं कर रहा है इस दुनिया में? लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड यदि आपका सही रहेगा तो डेफिनेटली विल एंजॉय। अब इसको ओवरकम कैसे करें? प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम कैसे करें? एक चीज ध्यान रखो, एक शब्द याद रखो, स्मार्ट अप्रोच। सब बोलिए एक ही आवाज में, स्मार्ट अप्रोच प्लीज। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब, एस का मतलब स्पेसिफिक। आपको क्या करना है आपको मालूम होना चाहिए। यदि ये स्मार्ट अप्रोच आप अपने जीवन में काम में लेंगे, आपको कभी कठिनाई नहीं होगी और हमेशा आप अचीव करते जाएंगे। So S means specific. Then M for measurable. M for measurable. Measurable का मतलब specific बता दिया। आप जो चाहते हो अपने लाइफ में उसको मेजर कर सको। कई बार आपको पूछा आप क्या चाहते हो लाइफ में? नहीं बस मेरी लाइफ अच्छी चले। अरे अच्छी किसको बोलते थे? हैं? या मैं सुखी रहूं, तो सुखी की परिभाषा क्या है? तो देयर शुड बी सम मेजरमेंट कि सुखी का डेफिनेशन आपके लिए क्या है। So whatever is the task, it should be measurable, action oriented. Action oriented मतलब आप जो भी टास्क लेते हो वो कर सको। So you must be able to take the action, और ये रियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक समझते ना? पॉसिबल एंड लास्ट में टाइम हो, कि भाई आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो कितने समय में अचीवमेंट करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप 80 साल तक वो करते ही रहो तो दूसरा कोई टास्क आपकी लाइफ में आए ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। सो एटलीस्ट देयर हैज टू बी सम टाइम डेफिनेशन। जब आप स्मार्ट अप्रोच को एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे आपके जीवन में कभी दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं एटीट्यूड की। एक बार एक सर्वे हुआ था कि आपको जीवन में सफलता किससे मिलती है? आपके नॉलेज से, ठीक है ना? फैक्ट्स एंड फिगर्स नॉलेज,
और या फिर आपके एटीट्यूड से। तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ था, तो उसमें क्या उन्होंने पाया कि 85% जो लोग हैं उनको सफलता उनके एटीट्यूड से मिलती है, सिर्फ 15% को उनके नॉलेज और फैक्ट्स और फिगर से मिलती है। अब एटीट्यूड किसको बोलते हैं? कि कुछ लोग होते हैं हमेशा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं आपके साथ में। तो आप हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करोगे या जो एटीट्यूड दिखाते हैं अपने आप को, तो उनके साथ मतलब डील करना पसंद करते हैं? कि जैसे मान लीजिए सपोज मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, एक मेरे पड़ोस में डॉक्टर है, वो बहुत होशियार है, लेकिन वो ढंग से जवाब नहीं देता है। एक से दो बार पूछ लिया तो वो फिर वो झिड़क देता है। और एक है थोड़ा दूर है, एवरेज डॉक्टर है, लेकिन वो बड़े प्रेम से बात करता है। तो आप क्या करोगे? अपने पड़ोस को छोड़ के वहां पे जाओगे। होता है नहीं ऐसा? कई बार होता है। इसी तरह से मान लीजिए सपोज आप फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हैं, एक कोई क्लाइंट है, 10 जने उसके पास चले गए, लेकिन उसने उसको रेस्पॉन्स नहीं दिया। 11वां जाएगा तो वो सब एकदम फ्रेंड हो गया, विन विन सिचुएशन हो गई और एकदम बड़ा बिजनेस मिल गया। ये कमाल कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड। अब ज्यादातर लोग क्या होता है कि वो अपनी लाइफ को एक मीडियोकर लाइफ, सुबह खाना मिल जाए, शाम को खाना मिल जाए, लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं हो, आपका रोटी कपड़ा मकान मिल गया, आपका परिवार हो गया, बस इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्या हम मीडियोकर? आर वी मीडियोकर? हम मीडियोकर तो नहीं है ना, हम तो अचीवर्स हैं और आगे भी अचीव करते रहेंगे। तो आगे अचीव करते रहेंगे तो उसके लिए क्या होगा? आपको अपना एटीट्यूड सुधारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एटीट्यूड को सुधारना पड़ेगा। तो चलो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने आपको कहा था कि एटीट्यूड में क्या होगा? प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करना पड़ेगा। कहा था ना मैंने आपको? क्या होता है शब्द प्रोक्रास्टिनेशन? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी काम है, कई सारे काम आपके लिस्ट में होगा, टू डू लिस्ट में होता है, उन काम को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। ये वर्ल्ड की सबसे फेमस आइजनहावर मैट्रिक्स है, जो एमबीए में और कई सारे मैनेजमेंट बी स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। आपने कभी ये मैट्रिक्स देखी पहले कभी? है? कोई बात नहीं। तो आप काम को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए। कौन कौन से? अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। समझ रहे ना? काम तो आपके पास खूब सारे होंगे, आपके पास है 24 घंटे ही, और उन 24 घंटे में काम भी करना, एंजॉयमेंट भी करना, फैमिली को टाइम भी देना, बच्चों को टाइम भी देना, सारा काम करना। तो क्या कीजिए, सारे काम को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आता है आपके प्रोक्रास्टिनेशन और इस मैट्रिक्स के बीच में। हमारी बचपन से आदत क्या पड़ी हुई है? हमारे मन को जो चीज अच्छी लगती है वो काम पहले करते हैं। आप समझ रहे ना? और यदि कोई काम अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है, उसको हम, चूंकि हमारा मन कहता है कि इसको बाद में करना है, तो हम उसको छोड़ देते हैं और हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती। आपको क्या करना पड़ेगा? यदि कोई काम अर्जेंट है, यदि कोई काम इंपॉर्टेंट है, सारे काम छोड़ के सबसे पहले वो काम करो। सारे काम छोड़ के सबसे पहले वो काम कीजिए। देन यदि कोई काम इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन काम तो करना है, लेकिन आज के आज अभी का भी नहीं करना, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसको प्लान कर सकते हैं कि उसको कब करें। करना तो है लेकिन आज नहीं करना, कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, 2 दिन बाद कर सकते हैं। और जो काम अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको क्या कर सकते हो? आप किसी दूसरे के थ्रू करवा सकते हैं, खुद आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। जनरल एक ह्यूमन बीइंग में 80% लोग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व किस में होते हैं? सबसे ज्यादा इन्वॉल्व किस में होते हैं? उस काम में जो न तो अर्जेंट है न इंपॉर्टेंट है। 80% लोग उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं जो न तो अर्जेंट है न इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल बताएंगे ऐसा कौन सा काम है जिसमें 80% हमारा यूथ, बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं उन्होंने नहीं देखा, फॉरवर्ड पे लेकर दिया। जो भी साइकोलॉजी रही हो, जो भी आपका माइंडसेट रहा हो, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लक्ष्य 2024 में। कितने लोग मेरे को ये प्रॉमिस करते हैं कि हम अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे और आज से इस आइजनहावर मैट्रिक्स को फॉलो करेंगे? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले करेंगे। ठीक है?
लेकिन इस व्हाट्सएप का तो फिर मिलेगा ही नहीं टाइम, क्योंकि दूसरे काम आपके पास इतने सारे पेंडिंग है कि वो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टाइम उसको दे सकते हैं, लेकिन जो आपका एम है वो सबसे पहले। अब मैंने आपको कहा था परफेक्शन पैरालिसिस। हमारी लाइफ में क्या होता, काम को बहुत अच्छा करना और वो बहुत अच्छा कभी नहीं आता, वो बहुत अच्छा कभी नहीं आता तो काम भी कभी नहीं होता होता है ना, तो काम भी कभी नहीं होता। अब ये बताइए कि देयर आर टू टर्म्स, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, दोनों में डिफरेंस है डिफरेंस। स्किल इज द एबिलिटी, आप ये काम कर सकते हैं, और कॉम्पिटेंसी का मतलब आप वो काम को कर लेंगे, आप में वो क्षमता है। अब दोनों बिल्कुल एकदम, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस नहीं है, फिर भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? स्किल का मतलब आपकी कैपेबिलिटी, आप उस काम को करने में सक्षम है, दैट इज कॉल्ड स्किल। और कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि आपको यदि वो काम अलॉट किया तो आप कर देते। मेरी बात समझे ना? तो आपका एटीट्यूड भी आपकी स्किल को मैच करता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी। अब कई लोग स्किलफुल तो होते हैं, कॉम्पिटेंसी नहीं होती। तो आपको नॉलेज है, आप उस काम को कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आपको वो काम को देने में रिजर्वेशन लगता है। क्यों रिजर्वेशन लगता है? कि उनको पता है कि आपको दे दिया तो वो काम नहीं होगा, पेंडिंग रहेगा। सो स्किल इज द एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी अलोंग विद द एटीट्यूड। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, स्किलफुल तो होते लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं होते। अब हम हमारी स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। कई लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होंगे कि आपने जैसे उनको कोई सवाल पूछा तो वो सोचते हैं कि यार इसको मैंने सिखा दिया तो कहीं ये मेरे से आगे नहीं निकल जाए। होता है ना कई बार, है? तो आपको नॉलेज शेयरिंग नहीं करते। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स कि लेक्चर अटेंड करने से सिर्फ 5% बेनिफिट होता है, जैसे आप कर रहे हो, उसी को आप रीडिंग करते हैं 10%, देन ऑडियो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, प्रैक्टिसिंग, और जो लास्ट स्टेज वो है टीचिंग अदर्स, दूसरों को सिखाना। यदि आपने किसी चीज को दूसरों को सिखाया तो उसको तो फायदा होगा 5% ही, आपको कितना फायदा होगा? 90%। तो कभी भी दूसरों को हेल्प करने में हेजिटेट मत कीजिए। यदि आपने दूसरों को सिखाने की टेंडेंसी रखी है, राकेश सर कह रहे थे ना, वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में हमेशा ट्रेनिंग करते रहते हैं, लेकिन कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आपके किसी साथी को कोई आपकी जरूरत हो, आधी रात में आप उसके साथ तैयार रहे, उसको फायदा होगा नहीं, लेकिन आपकी स्किल और आपकी एबिलिटी जरूर बढ़ेगी। अब एबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी, आप एबल तो है, लेकिन दूसरे लोग आपके ऊपर डिपेंड रह सकते ही नहीं रह सकते। सो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेबिलिटी। इस दुनिया में प्रॉब्लम तो सभी को होती है। मैंने कहा था एज लॉन्ग एज देयर इज अ लाइफ, प्रॉब्लम वुड बी देयर। प्रॉब्लम दो तरह की होती है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन हो सकता है, और एक ही ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है। समझ रहे ना? कई बार होता है ना कि इसका तो सॉल्यूशन है ही नहीं। तो अब मेरे को बताइए, ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन नहीं है तो क्या उसके लिए आपको चिंता करनी चाहिए? जिसका समाधान नहीं है तो क्या उसके लिए चिंता करनी चाहिए? है? नहीं, क्योंकि चिंता करो तो भी कोई समाधान तो है नहीं। सो यू नीड नॉट टू वरी। और ऐसी प्रॉब्लम जिसका समाधान है तो चिंता करनी चाहिए, समाधान है तो फिर काहे को चिंता करनी? तो फिर इस दुनिया में चिंता किस बात की करनी है यार? व्हाई टू वरी, काहे को चिंता करना? अब आता है मोटिवेशन। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए, लेकिन क्या कोई दूसरा आदमी आपको मोटिवेट कर सकता है क्या? कैन एनीबॉडी मोटिवेट यू? यस नो? कैन एनीबॉडी मोटिवेट यू? यस या नो? यस, यस वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। यस वाले कितने जने? और नो वाले कितने जने? क्या कोई आदमी आपको मोटिवेट कर सकता है क्या? मैं वापस पूछ रहा हूं, यस वाले कितने लोग हैं? मोटिवेट कर सकता है। और नो वाले कितने जने हैं? मैं आपको बता दूं, आपको इस दुनिया में कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। उसका रीजन बता दूं, मोटिवेशन इज एक्शन। मोटिवेशन क्या है? एक्शन है, और एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा। मैंने कहा था स्वर्ग में जाना तो मरना आपको ही पड़ेगा, तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो हाँ,
मैं मोटिवेशन के थ्रू आपको इंस्पायर कर सकता हूँ, आपको एनकरेज कर सकता हूँ। आई कैन नॉट मोटिवेट यू। वो एक्शन आपका आप ही को लेना पड़ेगा, आपका एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा, ठीक है। लीडर्स कौन होते हैं? अच्छे लीडर्स। लीडर्स दो तरह के होते हैं, एक तो अच्छे लीडर और एक खराब लीडर। अच्छे लीडर जो दूसरे लीडर्स को पैदा करते हैं, और खराब लीडर तो वो सोचते हैं कि यार ये लीडर बन गया तो मेरी कुर्सी खतरे में। खराब लीडर तो वो क्या करते हैं? फॉलोअर बनाते हैं। क्या करते हैं? फॉलोअर बनाते हैं। विजन क्या होता है? व्हाट इज विजन? एग्जैक्टली विजन का मतलब जो चीजें नहीं दिख रही है वो देखना। विजन का मतलब क्या होता है? फोरकास्ट करना। जो चीजें नहीं दिख रही, जो मुसीबत नहीं दिख रही है उसका फोरकास्ट करना। जिस होता है ना, एक तो बीमारी का इलाज होता है और एक आपको बीमारी हो ही नहीं। आप मेरी बात समझे ना? सो फोरकास्टिंग इज ए विजन। इसलिए अपन कहते हैं अच्छे लीडर के ही इज ए विजनरी। क्या बोलते हैं? ही इज ए विजनरी। तो हमें विजन में कि आने वाला समय कैसा है तो उसको पहले से फोरकास्ट करके अकॉर्डिंगली हमें एक्शन लेना, दैट इज कॉल्ड विजन होते हैं। विनर्स और अब मैं आप सभी में विनर्स कौन कौन होना चाहते हैं? प्लीज विनर्स। 2-4 दिनों के हाथ खड़े नहीं है, इसका मतलब या तो वो मेरे साथ नहीं है या फिर वो विनर्स नहीं होना चाहते। विनर्स कौन कौन होना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। भाई साहब, आप विनर होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते? ओके। इस दुनिया में लूजर कौन कौन होना चाहते हैं? चलो, तो अब मैं थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक बता दूं। विनर्स के पास हमेशा प्रोग्राम होता है और लूजर के पास हमेशा एक्सक्यूज होता है। क्या होता है? एक्सक्यूज होता है। विनर्स के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और लूजर के पास हर प्रॉब्लम का आंसर होता है कि इस वजह से नहीं हुआ, ये काम इस वजह से नहीं हुआ। उनके पास जवाब हमेशा तैयार रहता है। विनर्स कहते हैं कि ये डिफिकल्ट है लेकिन हो जाएगा, और लूजर क्या बोलते हैं? ये पॉसिबल तो है लेकिन डिफिकल्ट है। फिर विनर्स हमेशा कमिट करते हैं, ये हो जाएगा, मैं करूंगा। और लूजर क्या कहता है? क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं, कमिटमेंट नहीं करते। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड कमिटमेंट। विनर्स बोलते हैं मैं करूंगा, विनर्स क्या बोलते हैं? और लूजर्स क्या बोलते हैं? कुछ होना चाहिए। करेगा कौन? वो नहीं है। वो हमेशा कहते हैं ऐसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। अरे भाई, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारा काम सरकार ही करेगी क्या? या कंपनी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमेशा ज्ञान बांटते रहते हैं, लेकिन उसमें उनको पूछो भाई तुम क्या करोगे? वो नहीं, नो। फिर हमेशा विनर्स टीम का पार्ट होते हैं और लूजर्स एपार्ट मतलब टीम से अलग रहते हैं। वो खाली स्टेटमेंट जारी करते हैं। विनर्स वही कहते हैं जो वो करते हैं, और लूजर्स क्या कहते हैं? जो करते हैं वो कहते हैं। फिर विनर्स हमेशा पॉसिबिलिटीज देखते हैं, हर चीज में पॉसिबिलिटीज में। अच्छा, आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज कहाँ मिलती है? क्राइसिस के अंदर। पॉसिबिलिटीज कहाँ होती है? क्राइसिस में। जब खराब समय आता है उस टाइम सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज। तो जब जब भी क्राइसिस होती है तो उस क्राइसिस में जिस लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी बनाया वो टॉप पे पहुंच गए, और जो लोग दुबक के घर पे बैठ गए वो एवरेज मीडियोकर। सो वो हमेशा प्रॉब्लम देखते हैं लूजर्स। विनर्स हमेशा उनके आर्गुमेंट हार्ड होते हैं लेकिन आवाज सॉफ्ट होती है, और लूजर्स उसका उल्टा। फिर विनर्स हमेशा गेन देखते हैं, लूजर्स हमेशा पेन देखते हैं। अब ये आपने किसी ने स्टीफन कॉवी की किताब पढ़ी क्या? 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। इस दुनिया के 3000 लोगों के ऊपर रिसर्च की, 3000 सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के ऊपर रिसर्च किया। किसने? स्टीफन कॉवी। वो सक्सेसफुल को हर फील्ड में, अलग अलग फील्ड में, कोई पॉलिटिशियन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, अलग अलग फील्ड में 3000 लोगों के साथ रिसर्च किया और फिर कंक्लूजन निकाल के ये 7 हैबिट बताइए। ये 7 हैबिट आपके जीवन को सफल बनाएगी। अच्छा, फिर उसने क्या किया? 3 साल तक एक बिल्कुल एकांतवास में जाके इसने किताब लिखी, 3 साल तक, और उसका निचोड़ दुनिया के सारे टॉप 20 बुक्स में ये पढ़ेगा। सबसे पहला बी प्रोएक्टिव, मतलब कोई आपको दूसरा नहीं कहेगा, आपको यदि कोई अच्छा काम करना है तो आप खुद की तरफ से इनिशिएट करो, फटाफट में खत्म करो। देन बिगिन विद द एंड इन माइंड। कई बार होता है कि अपन काम चालू कर देते हैं लेकिन उसका एंड नहीं सोचते। एंड पहले सोचे कि ये मैं काम कर रहा हूँ तो इसका एंड क्या होगा।
यदि वो पहले सोच के फिर काम स्टार्ट करोगे तो आपको कभी पश्चाताप नहीं होगा। थर्ड थिंग इज पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मैंने आपको बताया ना, वो जो एक मैट्रिक्स बताई थी, जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले करना। द सेम थिंग, जो काम आपको पहले करना उसको पहले करें। देन थिंक विन विन। कई बार, हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, थिंक विन। हम हमेशा अपने लाइफ में क्या करते हैं, हमारा फायदा देखते हैं लेकिन अगले का फायदा नहीं देखते, समझ रहे ना। लेकिन यदि आप ये एटीट्यूड रखें, थोड़ा फायदा मेरे भी हो लेकिन अगले का भी थोड़ा बहुत फायदा हो, यदि आप इस तरह से विन विन सिचुएशन को देखेंगे तो आपका सोसाइटी बढ़ेगी, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा और आपको जीवन में सफलताएं मिलेगी। सीख फर्स्ट, सबसे पहले आप समझे, उसके बाद में दूसरों को बताएं, पर्सनल बाद में दे। Then synergy, 1 + 1 = not 2 = 11. And last is sharpen the staff. आप अपने टूल्स को शार्पन करते रहे। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने इतना पेशेंसली मेरे को सुना, हमने एंजॉय किया लाइफ को, कुछ चीजें नई, कुछ चीजें मतलब आपको तो सभी आता ही होगा क्योंकि आप सभी अपने एक लाइफ के एक मिडिल वाले पड़ाव में हैं, लेकिन फिर भी उनको रिफ्रेश करना जरूरी है। आप सभी ने पेशेंसली मेरे को सुना और अगली बार कभी अपन मिलेंगे तो और गपशप करेंगे और किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मेरा चैनल है अशोक जितावत, आज का सेशन भी पूरा आपको मिल जाएगा उस पर, और भी कई सारी नई बातें, इसके अलावा लाइफ के बारे में और कुछ टेक्निकल कई सारे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और भी कई नए टॉपिक्स है, ई कॉमर्स है, तो उसके बारे में हम हमेशा आप लोगों को जागृत करते रहते हैं। वंस अगेन लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस कंपनी की सारी टीम मेंबर्स को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस उदयपुर शहर में आए हैं एंजॉय करने के लिए और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। सालों में मोटिवेट नहीं कर पाया, आई बिलीव आपने आज पूरा सारांश दिया है इन सभी को। सो लेट्स गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। जोरदार एक तालियां हो जाए अशोक जी के लिए कि बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो आप लोग इनफैक्ट करते आ रहे हैं और जो आप आगे भी करते रहेंगे। आप आपके जो टीम मेंबर्स हैं आप उनको भी ये चीज़ें बता सकते हैं जो आपको काफ़ी गाइड करने में मदद करेगी। तो ये सेशन मज़ेदार रहा ही नहीं रहा? अरे बोलो तो सही, आवाज ही नहीं आ रही है। अरे ताकत दिखाओ, लक्ष्मी इंडिया है या बैठने? बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली अपने लिए बजाओ दोस्तों। Thank you so much guys for the complete support.